Good morning, students. This is part 1 of chapter Electricity and Circuits, class 6th Science, book Horizon. So let us just recall some questions like how do you use electricity in your home? What are some of the difficulties you will face when there is a power off, and where do we get the electricity from? And do you know of any gadgets that run on cells? Fine. So these are some questions. It is saying recall some questions. Then you will what actually you are going to learn about in this chapter is the sources of electric current, the dry cell, electric circuits, electric switch, your conductors and insulators, and the electrical safety. So let's start from the sources of electric current, which is very basic. A device that can be used to get electric current is basically called the source of electric current. So जिससे भी आपको करंट मिलेगा वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स इज द पावर सप्लाइड बाय पावर ग्रिड्स थ्रू हाई पावर इलेक्ट्रिक केबल्स. तो जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है हमारे घरों में वो बेसिकली पावर ग्रिड से जो बिजली आ रही है यूजिंग द हाई पावर इलेक्ट्रिक केबल्स, दैट इज़ द मेन सोर्स. Apart from this, we also use different types of electric cells and diesel power generators also. So electricity is produced in power generation plants, and these are of different types based on how they produce electricity. So basically जहाँ भी बिजली बनती है वो भी ये है कि आप कौन से तरह को यूज़ करके आपकी electricity is basically producing, which actually you are using the means or the method for the production of electricity. So for example, the thermal power plants produce power from burning coal. जो भी बर्निंग कोल से बिजली बनती है दैट वी कॉल इट थर्मल पावर प्लांट्स. सिमिलरली वाटर को यूज़ करके जहाँ से बिजली बनती है वी कॉल इट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. इट यूज़ द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर. Similarly, wind power plants use the energy of wind, and the solar power plants use the energy of sun. So this figure 14.1 shows the different sources of electricity generation. You can see this is a thermal power plant, wind power plant, and this is solar panel on a rooftop. So these are the different means from where we can get the electricity. Now next is the types of cells. An electric cell contains chemical which undergoes a chemical reaction to produce electricity. An electric cell may contain chemicals in liquid form, example car battery, or semi-solid, that is a dry form, example cells used in TV remote. So electric cells basically क्या होते हैं बेटा, उनमें कुछ chemicals रहते हैं और वो chemicals chemical reaction करते हैं. उन chemical reaction से they produce the electricity. और जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें अब आपका जो केमिकल है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कार बैटरी में लिक्विड फॉर्म में रहता है. सेमी सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे कि इस जो रिमोट टीवी के सेल्स हैं इन सब में जो भी सेल आप यूज़ करते हैं उसमें लिक्विड जो है बेसिकली केमिकल जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है. सो वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इलेक्ट्रिक सेल्स ऑन द बेस्ड हाउ वी यूज़ देम. अब सेल्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं यूजेस के ऊपर हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं. So basically there are two types of cells, primary cells and the secondary cells. So some electric cells can be used only once and have to be discarded when they get drained or run out of power. तो कुछ इलेक्ट्रिक सेल्स ऐसे हैं जिसे हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर उनकी बैटरी ख़त्म हो जाए या उनके केमिकल डिस्चार्ज ख़त्म हो जाए बिल्कुल और वो पावर रन आउट कर जाए तो उस केस में वी हैव टू डिस्कार्ड इट और थ्रो इट. फाइन. सच इलेक्ट्रिक सेल्स आर कॉल्ड द प्राइमरी सेल्स. तो ऐसे सेल्स जिनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट we throw it in the dustbin or the garbage as a garbage. That electric cells are basically primary cells. Now these are usually dry cells. अब देखो इन primary cells को हम usually dry cells बोलते हैं. Dry cells क्या है, वो primary cells जिसमें chemicals आपका semi solid form में है, that is why they are known as the dry cells. And examples are the batteries used in TV remotes, clocks and torch lights. और भी आपकी primary cells के examples है, जैसे कि जो remote TV में आपके cells डलते हैं, clocks में डलते हैं, torch lights में डलते हैं. So these are the basically your primary cells. Some electric cells can be recharged after they drain out. अब कह रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो रिचार्ज भी हो सकते हैं ड्रेन आउट होने के बाद. तो वो सेल्स जो रिचार्ज हो सके ड्रेन आउट होने के बाद उन सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स. सो दिस फिगर basically you can see this figure 14.2 when this it is the primary cell and this is the secondary cell जो मोबाइल बैटरी में है, लैपटॉप में है, that are the secondary cells which are rechargeable. So when you recharge your mobile phone you are recharging its battery. तो जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर आप अगर लैपटॉप रिचार्ज कर रहे हैं it means you are recharging your battery. Such electric cells are used in mobile phones, laptops, cars, etc. And it is like, did you know a battery is a collection of two or more cells. अब बैटरी क्या है आपकी, सेल अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो that will be
battery. Fine. Now next is what is inside a dry cell. It is very important part of this chapter, that what is inside a dry cell. So inside a dry cell is convenient to use as it is usually small and can be carried around easily. तो ड्राई सेल को यूज़ करना बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि एक तो छोटा है, दूसरा कहीं भी आप इसे ईजिली ले जा सकते हैं. अ ड्राई सेल कंटेन्स ड्राई सॉलिड और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स. तो ड्राई सेल में क्या होता है, या तो आपका केमिकल ड्राई फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में रहेगा, या सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स में. तो फिगर 14.3 आपको ये एक आइडिया दे रही है व्हाट इज़ बेसिकली इनसाइड अ ड्राई सेल. सो इट शोज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ ड्राई सेल. एज यू कैन सी इन द फिगर, अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स. तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारी लेयर्स हैं. अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो यू कैन सी जो आउटर कवरिंग है सेल की, इसको हम बोलते हैं जिंक कैन. बाहर वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलेंगे जिंक कैन. अब जिंक कैन के अंदर जो स्पेस है वहाँ अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट प्रेजेंट है, विच इज़ अ केमिकल. सो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है अंदर जिंक कैन के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज़ दी अगेन कंटेनर इज़ देयर, जो कि कार्डबोर्ड कंटेनर है. अंदर एक और कंटेनर लगा है जो गत्ते का है, और उस गत्ते के कंटेनर और इस जिंक के कंटेनर के बीच में जो स्पेस है वहाँ अमोनियम क्लोराइड पेस्ट फिल्ड है. अब कार्डबोर्ड कंटेनर के अंदर क्या है, आपका एक मैंगनीज डाइऑक्साइड केमिकल है और कार्बन पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ये आपको ब्राउन ब्राउन जो फिलिंग नज़र आ रही है, इट इज़ बेसिकली द पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड इन दी कार्बन. एंड उसके बिल्कुल सेंटर में, कार्डबोर्ड के सेंटर में आप देख सकते हैं ये कार्बन की रोड है और ऊपर ये मेटल की कैप है. दिस इज़ दी कार्बन रोड विच इज़ इनसाइड दी सेल, इन द मिडल ऑफ द सेल. और इसी कार्बन रोड के ऊपर आप देख सकते हैं मेटल कैप आपकी लगी है. तो दिस इज़ बेसिकली द मेन कंपोनेंट्स और द कॉम्पोजिशंस ऑफ द ड्राई सेल्स. Now next it is saying that it contains of a zinc container which contains a paste of ammonium chloride. अब कह रहा है कि ये जिंक कंटेनर से बना है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है. इनसाइड द जिंक कंटेनर इज ए कार्डबोर्ड कंटेनर विच कंटेन्स मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर्ड एंड मिक्सड विद कार्बन. अब उस जिंक कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है जिसे हम कार्डबोर्ड कंटेनर बोलते हैं. अब उस कार्डबोर्ड कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर्ड फॉर्म में और कार्बन जो उसके साथ मिक्स है इन दी पाउडर फॉर्म. देन इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स अ कार्बन रोड विद अ मेटल कैप. और सेल के बिल्कुल अंदर क्या है, आपका कार्बन रोड प्रेजेंट है सेंटर में बिल्कुल, और उसके ऊपर एक मेटल की कैप लगी है. द सेल इज़ कवर्ड एंड सील्ड. सेल पूरा का पूरा कवर्ड है और सील्ड है, except the metal cap of the carbon rod which sticks out at one end and the flat base of the zinc container that remains exposed to at the other end. It is like whole the cell is covered and sealed except एक तो metal cap जो बाहर की तरफ exposed है जो कि metal cap जो है carbon rod पे लगी है, वो metal cap थोड़ी सी exposed है, और दूसरा उसका बेस जो है आपका सेल का बेस वो भी थोड़ा सा दूसरी तरफ से exposed है. So ये दोनों चीज़ें exposed है, बाकी सब अंदर से covered और sealed है. नाउ योर कार्डबोर्ड हैज़ टाइनी माइक्रोस्कोपिक होल्स. अब कार्डबोर्ड के अंदर क्या है, छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स हैं. माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत ही स्मॉल लेवल पे होल्स हैं वहाँ पे. एंड अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द केमिकल्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट वाया दीज होल्स. और जो भी केमिकल रिएक्शन रहती है इन केमिकल्स के अंदर वो इन होल्स की हेल्प से रहती है. द केमिकल रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ ड्राई सेल. तो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, जैसे ही इन होल्स के थ्रू जो भी केमिकल प्रेजेंट है वो आपस में रिएक्ट करेगा, इट विल गिव राइज टू एन केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट इन अ ड्राई सेल. सो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ टू पॉइंट्स. आप इलेक्ट्रिक करंट का जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसके हमेशा 2 पॉइंट रहेंगे, और उन पॉइंट्स को हम टर्मिनल्स बोलते हैं, विच आर कनेक्टेड बाय अ वायर टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमेशा कोई भी सोर्स आप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, उसके हमेशा 2 पॉइंट्स रहेंगे. उन 2 पॉइंट्स को हम वायर से कनेक्ट करते हैं सो दैट उसके अंदर करंट आ सके या फ्लो कर सके. सो इन अ सेल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड दी टर्मिनल्स. सो मेटल कैप है आपके सेल में एंड द बेस ऑफ द जिंक कंटेनर दे एक्ट एज द टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल. तो आपके ड्राई सेल में जो भी मेटल कैप है ऊपर या नीचे जो भी बेस है जिंक कंटेनर का, दीज आर बेसिकली द टर्मिनल्स ऑफ अ ड्राई सेल, जहाँ से हमें वायर कनेक्ट करनी है और करंट यहाँ से हमारा फ्लो करेगा. सो मेटल कैप इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल. अब मेटल कैप को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं बेटा, एंड जिसको हम इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव साइन से. एंड द मेटल डिस्क इज कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल इंडिकेटेड विद अ नेगेटिव साइन. सो जो आपकी मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, आपका जो बेस है जिंक कैन का दैट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. Now when the positive and the negative terminals of a cell are connected to each other with a wire,
अगर आप सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को वायर से कनेक्ट कर दें एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दी वायर, तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ड्राई सेल.